So, yeah. Yeah. 1 or 2 seconds are there. Okay. How many seconds? Yeah. Half a second. Bola? As the debate has started, let us continue the debate after two. Question hour. This is time for question hour. Yeah. I'm not raising questions. I have to answer. Question number 16. Shri Banerjee. हाँ भाई. Absent. Any supplementaries? Supplementary? 1 minute. Half time. Go ahead. ये क्वेश्चन चल रहा है, आपका सब लेंगे हम इसके बाद. Given to this question is that land and colonization are state subjects, and it is the urban local bodies, हाँ ठीक. that is municipal authorities and development authorities, which issue licenses for real estate projects. Sir, we are presently discussed a real estate bill, exhaustive bill, and report has been submitted to this house, and parliament is dealing with real estate, and therefore this subject has been taken over by the union government for the guidance of the state government, and therefore to say that licenses are being issued by the urban bodies and then we have nothing to do with this is not a correct position. If that was so, the house would not have introduced the bill on real estates. Chairman, sir, what the honorable member is saying maybe technically sound to be this thing, but the question was specific, whether the government is planning to make a real estate licensing online, and if so, the details thereon. To my knowledge, there is no such licensing at all. What is in practice is the urban local bodies, they give approvals, permissions, no objection certificates, etc. That process is on. I do agree with the honorable member. The House in its collective wisdom has taken up this issue of real estate and we discussed it and referred it to standing committee. Standing committee has discussed it and then came back to parliament. Lok Sabha has approved, Rajya Sabha said again, send it to Senate committee. It has gone to Senate committee and it has come back. It is before the parliament. I will be very happy if the honorable members can go through that and then approve it in this session itself. Then the real estate bill will become a reality and the consumer's interest will be protected. As far as the issue of licensing is concerned, honorable member, there is no such procedure. That's what I have stated. Thank you, Shri Tarun Vijay. एक आपका नंबर आ रहा है, 1 मिनट है जी, आपका नंबर आ रहा है. It is here. नहीं भाई नहीं बिल्कुल नहीं. आप क्यों मोटिव मत एट्रीब्यूट कीजिए नरेश जी. सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो गरीब वर्ग है उनके लिए अच्छी हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए और इस क्षेत्र में जो रियल एस्टेट है उसके मूल्यों को सामान्य कस्टमर के स्तर तक लाने के लिए प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके अंतर्गत मंत्रालय क्या काम कर रहा है? थैंक यू. Chairman Sahab, this question is little away from the main question. Then you don't have to answer it unless you wish to. Yeah, no, we are focusing on about the approvals issue and also the regulation issue. The honorable member has asked about housing. A separate question can be put and I will be able to answer it elaborate. Thank you, Shri Naresh Agarwal. कि लैंड और कॉलोनाइजेशन दोनों सब्जेक्ट राज्य सरकार के हैं, तो क्या जो हम लोग लैंड एक्विजिशन बिल लाए हैं, रियल एस्टेट बिल लाए हैं, लैंड एक्विजिशन रियल एस्टेट बिल, क्या वो रियल एस्टेट बिल राज्य सरकारों के अधिकारों पे हनन तो नहीं है? तो क्या हम लैंड
जो रियल इस्टेट बिल है उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है कि नहीं ला सकती? इस विषय के बारे में कुछ लोगों ने, अध्यक्ष जी, पहले भी आपत्ति व्यक्त किया है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, आप सेंटर में इसके बारे में कानून कैसा बना सकते? इसके बाद में हम लोग जो बना रहे वो रेगुलेशन है। कारण क्या है, उसमें सेलर है, बायर है, बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए पुराना सरकार का ज़माने में एक बिल आया। वो अच्छा बिल था, उसमें कुछ सुधारना था। सुधारने के लिए कमेटी के पास गया, कमेटी ने अपना विवेचन के आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशंस भेजा है। ये विषय मैंने, कुछ लोगों ने इशू उठाए तो मैंने अटॉर्नी जनरल को रेफर किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा पार्लियामेंट को ये अधिकार है और ये कानून ला सकते हैं। उसके बाद फिर ये कानून लाने के लिए हमने प्रयास किया है। मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस, उनको भी हमने कहा ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, contracts including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract, entry 46, jurisdiction power of all courts except the Supreme Court. So the Attorney General has given an opinion concurring with the views of the Law Ministry, and the Parliament is competent to make such a law. That's why, as far as this issue is concerned, about the land as such, that's not my subject, but that also the Honourable Member is aware that has been referred to a joint committee of both the House of Parliament, as there could not be unanimity on that issue. Now that bill is what to be done with regard to that bill, the concerned minister will inform the House. Thank you. Question number 17. Sir, question number 17. आपका सप्लीमेंट्री। सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पार्ट ए में क्वेश्चन के डीडीए ने ये जवाब दिया है कि उनके पास 70 एकड़ लैंड है, जिसमें से 2.28 एकर्स जो है वो इंक्रोच्ड है। बाकी लैंड का स्टेटस क्या है, और अगर ये लैंड अवेलेबल है तो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के लिए इसे क्यों नहीं अलॉट किया जा पाया अभी तक? थैंक यू। अध्यक्ष जी, ये सवाल सचमुच में लास्ट सेशन में भी आए थे, तो थोड़ा सा उसको परिवर्तन करके दोबारा सवाल पूछा है। सवाल का मुख्य उद्देश्य है, ऑनरेबल सदस्य वहाँ कुछ उसको क्या कहते हैं, बारात घर और हॉस्पिटल वो बनाना चाहते। इसके बारे में वो जो लैंड वो चाह रहे थे उस पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, उनका पर्सनल नहीं है, मगर उसका फिर अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ा वो लिटिगेशन में है, तो इसलिए वो लैंड नहीं दे सकते। ये डिपार्टमेंट ने, LNDO ने पूरा डिटेल और DD से बात करने के बाद वो जानकारी हमको मिला, इसलिए इसको मंजूर नहीं कर पाएंगे लिटिगेशन के कारण से। दूसरा प्रश्न, इसमें ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने इसमें लिटिगेशन की जो बात की 70 एकड़ की नहीं की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये चला रहे हैं, ये गांव मैंने अडॉप्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्कीम है, और यहाँ बच्चियों के लिए 2-3 लाख की पॉपुलेशन है, कोई स्कूल नहीं है सर, दूर दूर तक, और रोज एक्सीडेंट होते हैं, बच्चियां जो है मथुरा रोड क्रॉस करके जाती हैं। तो क्या 2 एकड़ लैंड 70 एकड़ में इसके लिए अवेलेबल नहीं की जा सकती? तो फिर गांव अडॉप्ट करने की जरूरत क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या मतलब होता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इस स्कूल के लिए लैंड अवेलेबल करा पाएगी DDA या नहीं? थैंक यू सर। बेटी ये सरकार आने के बाद पैदा हुआ नहीं, पहले भी पैदा होते रहा और बढ़ते रहा। हमने मेरा कहना ये है, थोड़ा एक मिनट सुनिए ना प्लीज। विषय सर एक डिस्प्यूट में है। दूसरा जो जमीन माननीय सदस्य ने कहा वो जमीन इंक्रोचमेंट में है, और इंक्रोचमेंट हम हटा नहीं सकते। कारण क्या है, जो कानून जो हम लोगों ने सबने मिलकर पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया, वो पार्लियामेंट उसके अंतर्गत जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन है ऑक्यूपेशन में, उसको हटाना 2017 तक वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भी मैंने सुन लीजिए प्लीज। आप लोग बहुत अनुभवी है, और अब उस जमाने में क्यों नहीं हुआ वो मैं वो इश्यू के मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर माननीय सदस्य ने जब इश्यू उठाया तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, भाई पर्पस क्या है?
पर्पस लोगों ने बताया सर ये अमुक कार्य के है। मैंने कहा डिस्प्यूटेड है तो उसको अलग रखिए और इंक्रोच है तो अलग रखिए, इसके अलावा और कोई जमीन है क्या? तो अधिकारियों ने माननीय सदस्य का प्रतिनिधि को लेकर उस इलाके में गए और दूसरा एक गांव इंस्पेक्शन किया 19 को 13 bighas of land in Saidabad village is identified for school and community purposes. This is earmarked for freight company. This will be considered after due process. मैंने इनफॉर्मली उन लोगों को संकेत दिया, पर्पस अच्छा है, बारात घर भी जरूरत है, कम्युनिटी की भी जरूरत है, स्कूल भी जरूरत है, इसलिए इस लैंड को कोई छोटा सा मोटी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके उनको दीजिए, ऐसा मैंने कहा है। और उसका डीडीए का भी एक अथॉरिटी है, आपको भी मालूम है, आप स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपना काम पूरा करने के बाद उस दिशा में पॉजिटिवली हम एक्शन लेंगे। थैंक यू। श्री भूपेंद्र सिंह। I would like to know through you from the minister that if DDA will encroach any land, whether the DDA will give alternate land to that individual or the compensation will be made available to him as per the market value. DDA will never encroach land, it acquires land. So that may be the honorable member's allegation. Give the details. Please listen to the answer. Please send the details, I have no problem. The DDA, which is a public authority, Delhi Development Authority, it functions under statute and it has got its own rights and responsibilities. It acquires public land for some public purposes. Now, what the honorable member is saying, he has got some specific case where DDA has encroached upon some private lands. If at all any such thing is there, I will definitely get it inquired into and then take suitable action. श्री राजीव शुक्ला। मंत्री जो सवाल है वो एक दिल्ली के गांव के बारे में जहां बारात घर और स्कूल बनना लेकिन नहीं बन पा रहा। मंत्री जी ने पूरी दिल्ली की पिक्चर पेश की और बताया कि कैसे जो है इंक्रोचमेंट होता है, इंक्रोचमेंट को हटाना बड़ा मुश्किल है और उसकी वजह से आप जानते हैं दिल्ली में जगह कम है, उसकी जगह जगह से स्कूल बारात घर की मांग होती है लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं है, डीडी के पास और सरकार के पास नहीं। जो जगह उन पर अवैध कब्जा है, जगह जगह झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। मुंबई में जो स्कीम चल रही है सारे स्लम रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, ये दिल्ली में क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं? तो बहुत सी जगह सरकार को मिल जाएगी जहाँ इस तरह की चीज़ें बारात घर, स्कूल, हाउसिंग सोसाइटी सब सरकार बना सकती है। इस तरह की स्कीम यहाँ है, वरना दिल्ली में लिमिटेड जगह है और वहाँ कुछ हो नहीं सकता, इसको बढ़ा तो सकते नहीं, यूपी हरियाणा बगल में है। तो इस बारे में क्यों नहीं सोचते मंत्री जी? सुझाव है, जरूर सुझाव को हम अध्ययन करेंगे, मगर मेरा कहना यह है हम पार्लियामेंट सदस्य सब ने मिलकर हमारा विवेचन के आधार पर इंक्रोचमेंट्स हटाना नहीं चाहिए। इंक्रोचमेंट्स में जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आया, इंक्रोचमेंट में कुछ अदर इंस्टीट्यूशन भी आया, उसको हटाना रोक दिया हम सब ने मिलके। कारण क्या है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, ये रियलिटी भी है, बहुत इलाके में सब चल रहे हैं। हम लोग उस समय कुछ नहीं किया, बाद में उसको इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए गए तो उसमें पब्लिक रिएक्शन भी देखा, वो प्रैक्टिकल संभव भी नहीं है। सबको ध्यान में रख के 2008 में पुराना सरकार ने भी एक ऐसा एक ऑर्डर निकाला, बाद में हम सत्ता में आने के बाद मैंने गहराई से पूरा अध्ययन करने के बाद ये निर्णय पे पहुंचा, अभी इनको हटाना संभव नहीं है। जितना संभव है तो उसको उतना रेगुलराइज करना, जहां जगह नहीं है तो जो सुझाव दिया माननीय सदस्य ने वर्टिकल जाने के लिए, उस विषय में भी सोचें। थैंक यू। श्री रणविजय सिंह जुदेव। थैंक यू राजीव जी। सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहूँगा कि डीडीए की जो लैंड पूलिंग की जो व्यवस्था है वो कब तक पॉलिसी डिक्लेयर होगी, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के रूप में जो जोन्स बनने वाले हैं, एल जोन या जो अदर जोन बनने वाले हैं, वहाँ के किसान और जो डेवलपर्स हैं वो संशय की स्थिति में हैं। ये तो लैंड पूलिंग इज अगेन सेपरेट इश्यू। If the honorable member writes to me, I will definitely inform him about what is the progress made with regard to land pooling policy in Delhi. Sir, with regard to the facilitating the people who are encroaching there and providing them alternatives, the state government has to prepare a policy of rehabilitation and redevelopment of encroached colonies. That's the mandate.
that is yet to be done. Once that rehabilitation policy comes, then the central government will extend all the support to develop those colonies also. Question number 18. मेरा क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर सभा पटल पर रखा गया। जवाब में अध्यक्ष जी दिया गया है कि 6,886 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि इसमें से गुजरात में से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है? महोदय, जो सवाल है वो महिलाओं पर है और विधवाओं पर है। ये बड़ा कठिन होगा कि हमारे लिए अभी इस परिस्थिति में कि किस राज्य में कितनी महिलाओं को, लेकिन प्रत्येक मूलतः जो कौशल विकास का काम है महोदय, ये पूरे देश में पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नए विभाग का गठन किया और 1.5 साल की अवधि में इस विभाग का कार्य हमने प्रारंभ किया है। अभी इस कार्य को भारत सरकार के लगभग 24 मंत्रालयों में 70 योजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने ये प्रयास किया है कि हम कन्वर्जेंस क्रिएट करें और एक इकोसिस्टम के तहत स्किलिंग का काम पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ किया जाए और जहां राज्य सरकारें NSQF के तहत अलाइनमेंट करना चाहती है वो करें। इस जो बड़ी योजना जो कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से लॉन्च हुआ है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसके तहत लगभग 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव था। इसमें लगभग हम लोगों ने RPL है और प्रारंभिक ट्रेनिंग का व्यवस्था है। पारंपरिक तौर से जो प्रशिक्षण का काम इस देश में टेक्निकल एजुकेशन का था वो ITIs के पास था और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से निकाल करके ITIs को स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत दिया गया है। इसमें महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष तौर से हमारे पास RVTIs हैं और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो नोएडा में है, लेकिन इनकी संख्या भारत सरकार के अधीनस्थ जो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए और NCVT कोर्स के तहत चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो कम है। लेकिन राज्य सरकारों में और इस देश में लगभग 13,000 ITIs हैं, जिसमें लगभग 2,000 के आसपास सरकारी क्षेत्र में और बाकी 10,000 के आसपास निजी क्षेत्र में है। इसमें भी महिलाओं का प्रशिक्षण होता है, लेकिन ये पेड मॉडल पर है। जो कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है ये ग्रांट मॉडल पर है और जो फीस मॉडल पर है वो NCVT सर्टिफिकेशन के तहत इसमें महिलाओं का प्रशिक्षण है। लेकिन मैं कितनी महिलाओं को विशेष करके विधवाओं को एक राज्य में हुआ इसकी सूची मैं निकाल इसमें अभी संभव नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस फ्रेमवर्क में महिलाओं का प्रशिक्षण का काम चल रहा है। बताइए। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है वो अगर अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहे तो इनके लिए लोन देने की व्यवस्था सरकार ने की है क्या? महोदय, जो भी प्रशिक्षण का व्यवस्था है उसमें हमारा ये प्रयास है कि जितने लोग प्रशिक्षण पा सके उन प्रशिक्षित व्यक्तियों को या तो स्वयं रोजगार की तरफ इंडस्ट्री अलाइनमेंट हो, इंडस्ट्री की तरफ जाके उन्हें रोजगार मिल सके, और यदि 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो लगभग 70 से 75 लोगों को सामंजस्य करने के लिए या तो उद्योग की तरफ जाए और नहीं तो अपना व्यवसाय स्थापित करे। इसके तहत जो मुद्रा योजना के तहत कौशल विकास की योजनाओं को लिंक किया गया है ताकि मुद्रा के माध्यम से जो लोग अपने, जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई महिला ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और उसे लगभग 25,000 रुपये का किट चाहिए ताकि वो अपने गांव में उस काम को पूरा कर सके, तो ये लोन दिलाने का व्यवस्था हम लोग करते हैं जिसको एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखते हैं। मोबाइल रिपेयर का अगर वो काम नौजवान सीख लेता है तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास उसको रेजिस्टेंस मीटर वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं। अगर वो ले करके अपने गाँव में भी बैठ सकता है। आज लगभग 1,000 मिलियन के आसपास मोबाइल सेट्स हैं और बहुत ख़राब होते हैं और गांव में नौजवान लेकर के इस छोटे मशीन को लेकर के 10 से 20,000 रुपया कमा सकते हैं। तो हम लोग छोटे ऐसे प्रशिक्षित नौजवानों को जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रही है, चाहे वो टीवी रिपेयर का हो, डिश टीवी रिपेयर का हो, मोबाइल रिपेयर का हो, ब्यूटिशियन का हो, इनको मुद्रा से लिंक करके हम लोग प्रयास करें कि स्वनियोजित हो जाए। इसके लिए काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। श्रीमती रजनी पाटिल। आपके माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि एक जो सवाल पूछा है उस सवाल में स्पेसिफिकली विधवाओं के लिए पूछा है, लेकिन जो जवाब दिया गया है उसमें हर बात उन्होंने यही कहा है कि जिसमें विधवाएं भी शामिल हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन वो दे। और दूसरी बात आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो संख्या उन्होंने दी ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग के आधार पर कितने महिलाओं को कितने विधवाओं को एक्चुअली उसका कार्यान्वित नौकरियों में हो गया?
महोदय, ये बड़ा कठिन है क्योंकि कोई एक ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही जिसमें विशेष तौर से सिर्फ विधवाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है कि अभी तक जो सवाल है वो सही है, लेकिन उत्तर में हमने सभी महिलाओं के प्रशिक्षण के बारे में और ओवरऑल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी है, जिसके अधीनस्थ या जिसके अधीन महिलाओं के भी प्रशिक्षण है। लेकिन उसमें ये स्पेसिफाई करना भारत सरकार के स्तर पर या आपने ये प्रस्ताव दिया है इस पर, लेकिन उसका सेंसस प्राप्त करके ये शायद पहली बार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है। मैं इस पर अध्ययन करके ही उत्तर दे पाऊंगा। थैंक यू। श्री रामदास अथवाले। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मुझे जानकारी चाहिए कि जो महिलाओं के लिए मतलब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से मतलब हर साल किया जाता है, तो इसके लिए बजट इस साल का कितना है, मतलब लास्ट ईयर का कितना था और आगे का बजट तो अभी आएगा तो 2-3 दिन के बाद, तो मतलब ये इसके लिए कितना बजट है, और जो विडो महिला है या सभी जो महिलाएं हैं इसमें तो दलित महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए कोई विशेष मतलब रिजर्वेशन है क्या, ये मेरा सवाल है। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए और खास करके असंगठित क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, जो पिछली सरकार में कायम की गई है, उसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से जो संस्थाएं व्यावसायिक तौर पर स्किलिंग का काम करना चाहती है उन्हें हम सॉफ्ट लोन्स देते हैं ताकि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डअप करें और उसके बाद प्रशिक्षण का काम करें। जो शॉर्ट टर्म स्किल्स का है, जो लॉन्ग टर्म स्किल्स का है, या तो वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चला जाता है या ITIs में। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ी रूपरेखा तैयार की है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम वैसे जो आज अगर 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, जो हम 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनका खर्च वहन सरकार को करना होगा, 30 वो स्वयं कर सकते हैं। तो ये अपने आप में संख्या बहुत बड़ी है और इसीलिए इस पूरे व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस मंत्रालय के पास ये सबसे नया मंत्रालय है, हमारे पास महोदय भवन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो विभिन्न मंत्रालयों से जा करके बात करके, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या रेलवेज हो या डिफेंस हो, उनसे बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के वहाँ प्रशिक्षण का काम प्रारंभ करने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये कई सारे पार्टनरशिप के माध्यम से इस काम को हम पूरा करने का प्रयास करें। इसमें स्वाभाविक तौर से महिलाओं के भी प्रशिक्षण का काम है। आज देश में लगभग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं महोदय, लगभग 18 लाख इंजीनियरिंग सीट्स में से 8 लाख सीट्स खाली है क्योंकि उसमें लोग भर्ती दाखिला नहीं ले पा रहे। इसलिए हम लोग उसमें बंद इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बात करके, ताकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हॉस्टल हो, जहां कैंटीन हो, जहां लैब हो, जहां रूम्स हो, जहां ग्राउंड्स हो, जहां साइकिल शेड हो, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या उस प्रकार की संस्थाएं जो निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं हमारे साथ जुड़ करके गांव देहात में स्कूल ड्रॉप आउट से लेकर के +2 तक इस काम को हम स्किलिंग का काम कर सकें। तो इस लैंडस्केप को बढ़ाने के लिए मेरे मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत करके उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बजट के बारे में जो उन्होंने कहा, हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पैसा इस क्षेत्र में आए ताकि माननीय सांसदों के क्षेत्रों में भी और उनके राज्यों में भी बड़े पैमाने पर इस काम को, हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं, हम ITIs की भी संख्या इस देश में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एक पूरे इकोसिस्टम के तहत स्किल्स को प्रभावशाली बढ़ाने के लिए और विस्तार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। श्री बालागोपाल। SC/ST का भी इसमें प्रायोरिटी होगा। Before asking my question, I want to make a correction. In the answer, point 14, Kerala, it is given the place is Trichy. There is no Trichy in Kerala, sir. Trichy is in Tamil Nadu. So answer may be corrected because it's a technical. So that is one thing, sir. Yes, all right. What's your question now? Sir, it's very good, sir. This government is doing something for the development of the skill development. Sir, I want to know about the finishing skills, how the finishing skills is developed. Now, the traditional industries, basically the training is coming for traditional kind of employment or some computer and some IT is there. But basically, mainly you are giving traditional employment and traditional industries training. Sir, for attaining the maximum result from the skill development, we need some finishing schools, sir. Sir, in China it is told from some reports that they have 20,000 design centers, design schools or design centers. Now, whether the government will do something to start this incubation centers or design schools in connection with the existing training schools, then only the practical employability will be developed. Thank you. Design schools with the skill development schools. Thank you.
एक बड़ा नीतिगत सवाल इन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि पारंपरिक तौर से पिछले 67 वर्षों में हम लोगों ने जो स्किल्स की बात की है वो एजुकेशन के साथ जोड़ के रखा है, और पहली बार हम लोगों ने उसको स्किल्स को अलग से देखने का प्रयास किया। क्योंकि देश में अगर देखें जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो आंकड़े हैं, दुनिया से अगर तुलना करें, चीन, जर्मनी, जापान, आज कोरिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या लगभग 96% है, जापान में लगभग 80% है, यूनाइटेड किंगडम में लगभग 68% है, जर्मनी में लगभग 74% है। भारत में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 4% है। तो हमारा अनुपात बहुत कम है। और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, उनके बारे में अभी तक हम लोगों ने उनको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने शायद उसको उस रूप में नहीं लिया, लेकिन अगर उसको भी हम लोग विस्तार करें तो 7 से 8% है। तो ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ स्किलिंग सर्टिफिकेशन बेस्ड और एस्पिरेशनल्स नहीं हुआ। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में था, तो जो भी हम स्किल की बात करते थे वो लेबर से जोड़ के करते थे। आज हम एजुकेशन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, और एजुकेशन से स्किल को जोड़ना, स्मृति ईरानी जी से, एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी बातचीत हो रही है, और बड़े पैमाने पर 8वीं कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक, और कई राज्यों ने, जिसमें गुजरात का एक उदाहरण देना चाहूँगा, ITI पास करने वाले लोगों को इक्वलेंस नहीं मिलता था मैट्रिकुलेशन के लोगों को, इंटरमीडिएट के। अगर वो ITI में गया तो उसको आगे का पाथवे नहीं मिलता था, वो ITI में ही उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती थी वहीं पर। दुनिया भर में देखा गया है जो कौशल है, जो प्लम्बर है या टेक्नीशियन है या वेल्डर है, वो PhD तक करते हैं। लेकिन हम इस चेंजेस को क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत इस चेंजेस को लाने का प्रयास करें। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये काम वर्षों से होना चाहिए था, जिसको हम लोगों ने अब प्रारंभ किया है। स्कूली शिक्षा के साथ प्रशिक्षण जोड़ने का एक बड़ा आवश्यक पहल हम लोगों ने किया है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 19. 19. Yes, supplementary, please. Sir, thank you, sir. Chairman, sir, through you, I would like to know from the minister that the entire House witnessed to it that our country is yet to be equipped. We call that digital, and there is, as you know, sir, the country is so vast in the tribal area and hilly area. Even what to speak today in this house we debate that there are call drops and computer is so slow and internet is not working inside Delhi itself. Forget about the rural part of this country. So, sir, I would like to know from the government that the UPSC and the Staff Selection Commission that has made compulsory for the all appointments, sir. Appointments below grade 2, grade 3, grade 4 from the pay scale of 2,200 also, plus 2 boys and girls from the whole country. They are facing this. So online compulsory to register there, to give registration, will the government consider keeping this in view that we are not equipped in the country for online compulsory registration for our boys and girls, and especially in the hill areas, tribal area? Thank you. So the government will consider this, or what, sir? Chairman, sir, I'm glad that the honourable member has raised this concern, which is a concern for all of us. I'll just take a minute before I pointedly answer to what the honourable member has asked. In the last 18 to 20 months, the present government has undertaken a series of reforms in the selection process, both in the UPSC as well as in the Staff Selection Commission. And the primary objective of all these reforms is motivated by, I would say, 3 guiding principles. A, to make the selection more transparent. B, to provide a level playing field for candidates coming from different backgrounds, different streams of study. And C, to ensure ease of the selection. And I would also acknowledge that some of these reforms had also been initiated from the earlier government. And therefore, to the online process which the honourable member is referring to, it was in 2010 by the earlier government that the online switchover was done, both in case of the UPSC exams as well as in the Staff Selection Commission exams, and for which I acknowledge their initiative. Right now, the situation is that UPSC is almost 100% online, and it has worked quite successfully. Staff Selection Commission is about 95%. After we took over, we tried to push it forward and make it a little faster, because UPSC is already
online 100%. Staff selection was about 95 as of today. Now, this 5% which is left over is possibly the concern to which the honorable member is referring to. I would, in response, try to reassure him and also through you, sir, the entire House, that UPSC application is being done 100% online, and as of now, we have not received any complaint or any grievance from any candidate as a result of having switched over to online, which itself is a compliment to this initiative. As far as staff selection is concerned, I agree 5% is still not online, which is going through other means. Having taken cognizance of what the honorable member is saying and also giving a benefit of doubt, although we don't have a specific complaint, we have issued directions to the district collectors that if ever they come across any such instance or any such request from any candidate that he is feeling disadvantaged because of the lack of accessibility to online procedure, he should be provided means for that. And they have community centers, other places which would be taken care of. So it will be, but we cannot stop the onward march of switching over to online because the entire world is moving. This is a global phenomena. And to add to that, I would say that to bring in, because this is mainly concerning the youth of the country, we have introduced a number of other reforms, complementary reforms, to bring in the ease of selection. For example, the self-attestation was approved soon after the government took over. And from the 1st of January this year, I am glad to share with the House that we have done away with the practice of conducting interviews for Group C and D posts of the non-gazetted level. And I have to also acknowledge that some of the states like Gujarat, Rajasthan, Maharashtra have made a good headway also following up this, what we have done at the center. Uttar Pradesh has completely abolished the interviews for the teachers. And therefore, the entire process is motivated by the noble objective of bringing in ease, transparency and a level playing field. Thank you. Second question. Chairman, sir, now that the minister has agreed that for staff selection, yes, there are problems because this is the pay scale, the 10+2 students are appearing. And it is understood that, sir, there is no infrastructure, whether there is infrastructure available with the staff selection commission throughout the country. If it is yes, it is not there, then what immediate steps the government is going to make infrastructure available till that time, at least for staff selection commission? It should not be compulsory, sir. The registration should not be compulsory online. Thank you. No, having taken cognizance of what the honorable member has said, I would slightly disagree. I did not say we are facing problems. I said we have not faced any problem. I said just the reverse. Just let me. You are not the candidate, sir. Let me, sir. I am making an objective statement. We have not, as of date, received any complaint from any candidate. Having said that, we believe in the principle of giving benefit of doubt. And I agree with you, sir. I also come from a very remote area where my even internet may not work very uninterruptedly. Therefore, giving that benefit of doubt, we have given directions to the district collectors, because they are the most responsible administrative officers over there, to be little alert. And wherever they come across this problem with any candidate, they should facilitate that. So this is being taken care of. But at the same time, we cannot stop the onward march. The switch over to online has to take place. And as I acknowledge, it was initiated by the earlier government, and rightly so. We have carried it forward, maybe at a faster pace. Shri Avinash Khanna. थैंक यू सर। पहले तो मंत्री को बधाई देता हूँ। ऑलमोस्ट जो मैंने पूछना था उसका आंसर तो काफ़ी आ गया, लेकिन सर क्योंकि हम लोग बहुत रिमोट एरिया से आते हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ मंत्री से, अगर कोई, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन कुछ समय में लोड होनी होती हैं, कंजेशन बहुत हो जाता है, एक एप्लीकेंट की एप्लीकेशन उसने ऑनलाइन कर दी लेकिन वो नहीं पहुंची, तो उसको बेनिफिट देने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म है या नहीं है? अगर है तो उसके लिए कोई अवेयरनेस क्रिएट की गई है कि नहीं की गई? तो उसका वेबसाइट या उसकी कंप्लेंट लॉजिंग, उसका रिमूवल, वो क्या सिस्टम है, ये जरा हाउस को बता दिया जाए। जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा, प्रश्न ये नहीं है कि अगर दिक्कतें हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, करना तो ये ही है. वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू मूव अहेड इन दिस प्रोसेस. And as I acknowledge, this was successfully initiated by the earlier government. We've carried it forward. अब
जहाँ तक ये 5% इस प्रकार के लोग हैं जिनके पास जिन्होंने दे हैव स्टिल नॉट ऑप्टेड फॉर दिस ऑनलाइन, और जैसा मैंने कहा उनका भी संज्ञान लेते हुए हमने न केवल ज़िला प्रशासन को इस प्रकार की निर्देश दिए हैं, बल्कि कुछ एक हमने हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर्स भी रखे हैं। परंतु जैसे आपने कहा इसका अधिक और प्रचार करने की आवश्यकता है, तो निश्चय ही इस बात का ध्यान रख करके प्रचार हो रहा है, परंतु थोड़ा सा और अधिक हो, ये एक इट इज़ अ हेल्दी सजेशन विच वी टेक। थैंक यू। नहीं, टेलीफोन नंबर जगह जगह के फैसिलिटेटरी नंबर्स हैं, वो वेबसाइट पर मौजूद हैं। थैंक यू। श्री AU सिंहदेव। Sir, the Public Service Commission, both at the union and state levels, have been largely criticized for the lack of transparency and public accountability. Whether the government, I would like to know from the Honourable Minister, whether the government plans on undertaking measures to make competitive exams, particularly the UPSC, more transparent and accountable to the public through provisions of answer sheets and marks obtained during personal interviews. Thank you, sir. Well, I think with each successive year, the element of transparency is being enhanced. As of today, as far as Staff Selection Commission is concerned, not only the answers, even the key to answers is being put on the website. And having put the key on the website in public domain, then we also invite suggestions, so that if any candidate says, no, our answer is erratic, then we have the room for correction. So we are certainly each day trying to move in that direction. As far as the UPSC exams are concerned, which includes the IAS and the other civil services, we have the earlier question papers of the earlier years put on the website along with the answers, and any specific query is received in case of any candidate, the answers and the marks are also provided. Dr. Gill. Sir, I compliment the Minister on a very comprehensive and worthwhile answer. But I also seem to understand the worry of the gentlemen, the members from Odisha. Odisha, you know, in all of us, has got serious problems of backwardness. And there are many other states, Chhattisgarh, I bet, the tribal areas. What they are asking really is, and the Minister has shown that yes, we need this system, yes, it is to keep up with the future, and in the senior applications, there is no trouble. The trouble is in the lowest constable bharti karne hai, chapadasi bharti karne hai, etc. And there, these gentlemen are very concerned. I would only suggest to the Honourable Minister, since he is so keen to improve it, that please go deeper into this, how to make sure. I have been a collector. The collector, you will tell, the collectors are very busy men, and sometimes they are very indifferent men. They don't bother. Time ही नहीं मिलता कि कहाँ से ये छोकरा आ गया कि इसकी मैं अर्जी का कुछ बंदोबस्त करूँ. So there are all sorts of worries. I suggest they explain to you in writing or somehow in detail, and you look a little more specifically into the class 4 recruitment, where you also come, as you said, from an area which I know, in the hills. Thank you. Chairman, sir, this suggestion is well taken. Actually, we are already working in this direction. And as far as the lower posts and the junior posts and the non-gazetted posts are concerned, the Honourable Member will be glad to know through you that beginning from January 1st this year, we have, in fact, in all the central government ministries and departments, discontinued the practice of holding interviews, because there was a kind of a social culture and social psyche. The moment an interview letter is received in the family, everybody starts running here, there, looking for the interview members, trying to find out who's on the board of the interview. And it becomes a big exercise. I came across an incident where a candidate had traveled all the way to Ludhiana, and just to understand myself, from my understanding, I tried to ask him why it was so. He told me that one of the members had a doctor who was working in a hospital in Ludhiana. So he traveled all the way. So it's not only a harassment, it also interferes with the transparency and impartiality. And as I said, we are also repeatedly requesting the state governments. In fact, the government of Uttar Pradesh has already abolished interviews for the level of teachers. We now have interviews only for such assignments where certain skill is required. But there too, the skill test is only qualifying test. So it does not actually interfere. So we are trying to cut down on the room for nepotism or also room for any other considerations by way of interview. So this is one step. Similarly, sir,
I'll just like to add to that, beginning from this year, in fact from 25th of December, which we observed as the Good Governance Day, marking the birthday of Shri Atal Bihari Vajpayee ji, we have initiated the process of simplifying the application forms. As you would agree with me, we have voluminous forms, repetitive information. Every fifth page they ask you son of, as if every fifth page the father changes. It's so ridiculous. So myself also got into this exercise. We prepared a form. We began with a pensioner's form. Now, for example, for a pension, what is required? You require the name of the pensioner, the date of the birth of the pensioner, the age of the date of retirement, the last pay scale on which the pension is to be decided, the nominee from the family to whom the pension should go in case the pensioner doesn't live tomorrow, and fifth, maybe bank account. You don't require how many times he is married, not married, etc. So we are trying to cut down and simplify it, because that would not only add to ease but also add to transparency and impartiality. Thank you. Question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 सर सभा पटल पर रख दिया। Supplementary, please. माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए इस प्रश्न पर। इसमें बड़ा स्पष्ट सवाल किया गया है कि कितने भारी उद्योग रुग्ण है। उसका जवाब आ गया है कि एजेंसी ने मार्च 2014 तक 65 यूनिट रुग्ण थे। दूसरा सप्लीमेंट्री उसी में सवाल किया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि 65 अगर रुग्ण हैं तो सरकार की अगर मंशा है उनको रुग्णता से निकालने का, तो उसकी योजना क्या है और उसकी समय सीमा क्या है? सभापति जी, जो 65 लोक उद्यम आज बीमार है, वह अलग अलग भिन्न भिन्न मंत्रालयों के तहत है। मेरा मंत्रालय डीपी द्वारा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सदन के समक्ष जब भी कोई प्रश्न आता है तो वो जानकारी सदन के समक्ष रखते हैं। मेरे मंत्रालय के तहत भारी उद्योग विभाग, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, 12 उद्योग है, लोक उद्यम है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, 19 उद्योग हैं जो बीमार है। ये कई वर्षों से बीमार है, ये आज बीमार नहीं हुए हैं। 2007 से ये सारे उद्योग धीरे धीरे बीमार होते गए। जब से हमने इस विभाग का पदभार संभाला है, मैंने निर्णय किया कि जो बीमार उद्योग है, जीरो प्रोडक्टिविटी है, कोई काम वहाँ चलता नहीं, सैलरी चल रही है, प्रमोशन चल रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद हो रहे हैं। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जो बीमार है, जो बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते, जिनको बंद करना ही आवश्यक है, तो ऐसे 5 उद्योग जिनका हमने चयन किया और उनको बंद किया, जिसमें एचएमटी चिनार है, एचएमटी बेरिंग है, एचएमटी वॉचेस है, तुंगभद्रा स्टील है, हिंदुस्तान केबल कॉरपोरेशन है। तो जो बीमार है, जो नहीं चल सकते, उनके बंद करने का हमने निर्णय किया है। और जो जिनका रिवाइवल हो सकता है, ऐसे 3-4 उद्योग जो मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनके रिवाइवल का हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश और आसाम में दोनों राज्यों की विशेष परिस्थिति है। वैसे आसाम ने तो इकोनॉमिक फ्रंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन अगर उद्यम भी वहाँ अगर मदद करके उनको आगे बढ़ा दिया जाए, जीवित कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ आसाम और उत्तर प्रदेश दोनों का बड़ा कल्याण होगा। उसके बारे में मंत्री जी कुछ प्रकाश डालेंगे। थैंक यू। सदस्य का जो सवाल है वो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है। आसाम का कचहर का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो देकर हम इस कचार के एचपीसी को रिवाइवल करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। श्री संजय राउत।
थैंक यू सर। सर 65 सिख पब्लिक सेक्टर के बारे में मंत्रालय ने जानकारी दी है, जिसमें से बहुत से बीमार है और बीमारी के बाहर नहीं आ सकेगी। लेकिन मेरी जानकारी में कुछ ऐसे भी उद्योग है जो भारी मंत्रालय ने उनकी योजना बनाई थी, उनकी घोषणाएं की थी और अब तक वो आगे नहीं, उसका प्रपोजल आगे नहीं चला। उसमें से उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पेपर मिल, एक पेपर उद्योग का प्रोजेक्ट रहा है अमेठी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अमेठी में आपके मंत्रालय के तहत जो पेपर इंडस्ट्री बनाने का एक प्रोजेक्ट था, उसका स्टेटस क्या है? क्या थैंक यू वो प्रोजेक्ट आगे जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो क्यों जा रहा है और कहाँ बनेगा? सभापति जी, जगदीशपुर पेपर मिल के बारे में सदस्य संजय राउत जी ने यहाँ पर प्रश्न किया है। वैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 ये दोनों सरकार के समय 2007 में जगदीशपुर पेपर मिल को कैबिनेट ने सैंक्शन किया। 2014 में सरकार जाते जाते वह फिर एक बार कैबिनेट ने उसे पारित किया, लेकिन दुर्भाग्य से जो ज़मीन का मामला है वो यूपी के उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। जो ज़मीन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिलनी थी, वो ज़मीन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे नहीं पाई। जो दूसरी ज़मीन है वो एक ट्रस्ट की है, जो ट्रस्ट न्यायालय में गया हुआ है और मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। और इसीलिए 2007 से आज 2016 में हम हैं, लेकिन हम उस जगदीशपुर पेपर मिल को शुरू नहीं कर पाए। जब ये मामला कोर्ट का सुलझ जाएगा तब इसके बारे में विचार किया जा सकता है। डॉक्टर मुंगेकर, नहीं, नो सप्लीमेंट्री ऑन सप्लीमेंट्री। डॉक्टर मुंगेकर। Sir, with all regards to the Honorable Minister, the reply given to all the please reply given to all the 4 sub-questions is absolutely evasive. There is no clear-cut answer. That's why the supplementary is as follows. Out of these 65 six industries, if 5 are to be closed, then out of the remaining 66 industries, has the ministry classified that what is the degree of their sickness and what kind of revival is necessary? Because the answer minister has just now given, that ministry is collecting the information. The heavy industry ministry is not the data collecting center. It is the ministry supposed to the policy. That's why the question was, what concrete policy in order to address the question of sickness, what kind of sickness and what kind of revival plan they are having? Thank you. Thank you. पति जी, मेरे पास 2 विभाग है, एक भारी उद्योग है और दूसरा लोक उद्यम है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो सवाल है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है और इस विभाग का काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कलेक्ट करते हुए जो कंसर्न डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्रीज है उनको सलाह देना। तो इस प्रकार की सलाह डीपी द्वारा जो 65 सिक यूनिट्स हैं उन सारे कंसर्न मिनिस्ट्री को मंत्रालय द्वारा दी गई है। निर्णय उन मंत्रालयों को करना है। जहां तक मेरा संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जिसकी जानकारी मैंने पहले प्रश्न में दी है। थैंक यू। श्री तपन सेन। Definitely, I don't like to embarrass Honorable Minister by raising question on the 6 CPSUs pertaining to other ministry, which is not your brief. But I want to point to you out that these 65 SIC units, this is being carried on in the public enterprise survey at least for more than a decade. So it's a matter of this indifference of the successive governments
And still we are talking about Make in India. By closing down HMT and at the same time chatting the Make in India doesn't match. Because HMT is the machine tool industry, the backbone of our industrial society. So that is what is. But my point is that under your ministry, you see, we have been pursuing at every stage, if possible by every month, Tire Corporation of India. It is under you. Last 3 years, workers are not getting salary. You may wait for 17 years for Ahmedabad paper mill, but the workers who are not receiving salary, people who are retiring without their PF gratuity and other terminal dues, the number of contract workers who is to survive on that public sector industry, whose number is more than the regular workers, who are just starving. What will be your perspective plan? You may wait for 17 years, but uska ghar mein to chula nahi chalega. So come se come, which are in your department, which are not revivable, there must be a time-bound action. And which is not revivable, as per on your BRPSC, on Tire Corporation of India, BRPSC has given up. That is my question. All right. BRPSC has concluded his observation. You have also made up mind, but still 3 years, they are not getting their wages. Thank you. Hindustan Cables Corporation, I don't know what is it is a tug of war between Defense Ministry and your ministry is going on, that they will take over and revive it. I don't know what is the situation, but workers are in same limbo till now. Have you got any time-bound plan? I am not talking about your Make in India and all these things, but they are poor individual workers. At least give them that, okay, this is my final fate. Thank you. Don't delay on it. That will not help. I think this is one of your own mandate of your ministry. सभापति जी, सदस्य तपन सेन जी ने जो कर्मचारियों की चिंता यहाँ पर जताई है उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने टायर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात यहाँ पर कही है। दुर्भाग्य से टायर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिस पर कोर्ट ने प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, और कोर्ट ने लिक्विडेटर अपॉइंट करने के कारण हम अब उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने लिक्विडेटर प्रोविजनल अपॉइंट किया हुआ है। और इसी वजह से पिछले कई दिनों से, कई महीनों से उनका वेतन तक हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान केबल की बात उन्होंने कही है, हिंदुस्तान केबल का निर्णय हमने किया है। सभापति जी, मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी यूनिट हमने बंद करने के निर्णय किए हैं, उन सभी का स्वागत कर्मचारियों ने किया है। इसलिए किया है कि जो कर्मचारी 1987 के पे स्केल कर वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको हम 2007 के पे स्केल से वीआरएस दे रहे हैं। तो इतना अच्छा पैकेज इसके पहले कभी भी किसी सार्वजनिक लोक उद्यम में नहीं मिला था। तो सारे कर्मचारी उसका स्वागत कर रहे हैं, विरोध कहीं भी नहीं हो रहा है। तो ये निर्णय हमने किया है, जो मेरे मंत्रालय के तहत आते हैं उन सारे उद्योग के मामले में ये निर्णय हमने किया है। केबल कॉर्पोरेशन का भी अंतिम निर्णय हो चुका है। एक महीने भर के अंदर लगभग ये सारा मामला सेटल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन प्लीज मिस्टर तापन सेन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टायर कॉर्पोरेशन का मैंने जवाब दिया। I can take only 3. No, Mr. Tapan Sen. That's all. Question 21. Question 21. Answer is laid on the table of the House. Okay, let the question be answered. Supplementary, please. All right, you can take it up with the minister if the answer is not to your satisfaction. मंत्री जी, दिनांक 1/2016 को केंद्रीय भंडार द्वारा सौंपे गए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से 6.81 लाख रुपए के लाभांश चेक प्राप्त करते समय प्रतियोगी मूल्य पर दैनिक प्रयोग के विभिन्न घरेलू सामानों एवं उत्पादों को मुहैया करवाने के केंद्रीय भंडार के योगदान की आपने सराहना की थी। दूसरी तरफ आप, प्रश्न क्या है आपका? सर मेरा आ रहा है प्रश्न। दूसरी तरफ आप केंद्रीय भंडार द्वारा दी गई सुविधाओं को कॉस्ट इफेक्टिव न बताकर इन सुविधाओं को बंद करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इन केंद्रीय भंडारों को जीवित रखने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है? थैंक यू। Chairman sir, this is a very long story actually, and इसमें आपने दो पहलू हैं।
एक चेक का आया 6 लाख के 7 लाख का, एक डिविडेंड होता है प्रतिवर्ष डीओपीटी को केंद्र भंडार की ओर से मिलता है। उसका धन्यवाद करना हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है, कर्तव्य है, वो अपनी जगह एक बात है। एंड उसके अतिरिक्त जो निर्णय हुआ केंद्रीय भंडार को लेकर के, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द वर्किंग ऑफ केंद्रीय भंडार, इट्स ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव कमेंट। आप इसकी बैकग्राउंड शायद बहुत से सदस्यों के ध्यान में नहीं होगी। केंद्रीय भंडार का पहला स्वरूप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉर्पोरेशन 1963 में हुआ था, आज से 52 वर्ष पहले। उसके उपरांत सन 2000 ईस्वी में इसका नया स्वरूप आया, जब इसका विस्तार प्रदेशों में हुआ, इट बिकेम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1981 में डीओपीटी ने एक प्रावधान, नो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, you want me to speak or not? Let the chair decide. Please complete. So 1981 DOPT brought in a provision that certain items like stationery etc would be purchased from Kendriya Bhandar. It became incumbent on the ministries. In 2007 there was some modification. They said up to 1 lakh without tender, above 1 lakh without tender, with tender. Now from 2015 March 31st, this special dispensation for the purchase of stationeries, other items has also been withdrawn. Now I'll tell you why. It is not a reflection on the working of Kendriya Bhandar. The market dynamics has changed. The whole economic scenario has changed in the last 50 years. And I'll give you small evidence. In the support of your continuation of this stationery benefits or dispensation, you have cited the items which according to you are sold at a lesser price compared to market price. And the number one item cited is Brook Bond tea, which was possibly the most popularly sold tea 30 years ago. Now it is not so. So it is not a reflection on your working. We'll have to revisit, you and I, both of us, because Kendriya Bhandar came into existence 52 years ago in a different format. Now, because of the changing dynamics of economics, of cost effectiveness, of the variety of options available, of the change in the consumer's preference, this has to change. However, फिर भी हमने ये कहा कि आपका भी पूरा ध्यान रखा जाए, इसलिए I went one step further. We have constituted a committee under the Federation of Commerce of India, Confederation of Commerce India. एंड उस कमेटी के को ये हमने उनको ये मैंडेट दिया है, वो उसका अध्ययन करके हमें समझाएंगे कि किस प्रकार वी कैन हैव एन आउटकम वेयर यू कैन ऑल्सो थ्राइव एंड वी कैन ऑल्सो। बट जो आप कह रहे हैं कि हम सभी मंत्रालयों को कहें कि स्टेशनरी आपसे खरीदे, दूसरा करें, सो दैट विल बी लिमिटिंग देयर चॉइस ऑफ परचेज, which is not compatible with the present global scenario and the country scenario. Thank you. दूसरा प्रश्न जी, अगर केंद्रीय भंडार से सामान खरीदना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए कोई उपाय आपके मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं? थैंक यू। देखिए, बात यह है, जैसे मैंने कहा कि 50 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। अब 2015-16 का आंकड़ा आपको मैं बताता हूँ। आधे वर्ष में जो हमारा रेवेन्यू हुआ है 498 करोड़ और हमारा खर्चा हुआ 494 करोड़, अर्थात केवल 4 करोड़ कमाने के लिए प्रतिवर्ष इतना बड़ा संगठन जीवित रखना, ये कोई साधारण बात नहीं, और इसको एक्सप्लेन करना भी थोड़ा कठिन है। परंतु जैसे आपने कहा कि कोई समाधान हो सकता है क्या, वर्तमान परिस्थिति में कोई इसका बड़ा सरल समाधान नहीं नजर आता, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, तो हम किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी 1963 वाली पर ही सारा निर्भरता रखें। परंतु फिर भी एक समिति का गठन कर दिया गया है, वो आपकी भी रिपोर्ट्स लेगी, आपके कंसर्न्स का भी संज्ञान लेगी, और जिस प्रकार की आगे बढ़ने की कोई होगी संभावना, उस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। थैंक यू। श्रीमती अंबिका सोनी। To ask the Honorable Minister that they have taken a call in 2015 because of global pressure to do away with the scheme which the UPA government changed to help the small and medium entrepreneur. I want in the same context to know from the Minister
the UPA too, under Dr. Manmohan Singh, took a decision that the Ministry of Medium and Small Enterprises would purchase government requirements up to 20% from Dalit-owned entrepreneurships. And have they changed that also in order to leave the Dalits also to face multinational challenges? No, I think we are actually simplifying. It's not that simplistic a thing. What I have acknowledged what the earlier government did, and I think this is not certainly a reflection of what the earlier government did or the present government did. Sorry. Yes. No. This is a process. I am afraid. This is a process which has evolved over the years, and the circumstances. I am afraid and the question hour is over. The milieu has Dr. changed. I'm afraid the question hour is over. Sir, 1 minute. Yes, sir. sir. Would you like to say something? Pardon? Can I get an answer because the minister... Please write to the minister and you'll get an answer, I'm sure. Sir. Yes, sir. सर आपके प्रयासों से और सदन के सहयोग से आज सदन बहुत शांति से सुचारू रूप से चल रहा है और सुबह बहुत ही पॉजिटिव शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की शुरुआत हुई है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है अगर सदन की राय हो तो हाफ एन आवर ब्रेक करके और 1:30 से हम जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो आनंद शर्मा जी का कॉलिंग अटेंशन है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और अगर चेयर उस पर अनुमति दे कि वो फिर किसी और दिन कर ले। नहीं, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, 2 बजे भी कर सकते हैं हमें। House is adjourned till 2 p.m.